In our previous video on Indian monsoons, we have discussed about Halley's view about the origin of monsoon. According to him, the monsoons originate due to the differential heating and cooling of the land and the water surfaces. In this video, we'll be discussing about the modern concept for the origin of monsoon. Halley's view were not completely accepted, but they form a solid base for the development of the modern theories about the origin of monsoon. Flown, Thomson, Frost, M.T. Yin, Young, Takashahi, and many others have tried to find out the reasons for the origin of monsoon winds, and on the basis of their opinion, their views have been classified into two groups: the air mass theory, Vayu Rashi Vichardhara, and the second is the jet prabha Vichardhara, the jet stream theory. द्वितीय युद्ध के पश्चात the upper atmospheric circulation was studied very significantly, और उसके बाद ये माना गया कि मॉनसूनी पवनों में उत्क्रमण जलीय और स्थलीय प्रदेशों के तापमान में अंतर होने के कारण ही नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ और कारक भी उत्तरदायी हैं। हिमालय और तिब्बत का पठार एक बड़े फिजिकल बैरियर के रूप में कार्य करता है। दूसरा, क्षोभ मंडल में ऊपरी परत में तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय, नलिकाकार और विसर्पी पवनें, जिन्हें हम जेट प्रवाह के नाम से जानते हैं। तीसरा, the occurrence of ENSO, अल नीलो, ला नीलो और दक्षिणी दोलन in the South Pacific Ocean, and lastly the Walker cell in the Indian Ocean, ये भारतीय मॉनसून के ओरिजिन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। Role of the Himalayas and the Tibetan Plateau. Since 1970, it is found that the Tibetan Plateau plays a crucial role in initiating the circulation of monsoon in India. Before this, in 1950, भारतीय मौसम वैज्ञानिक पी कोटेश्वर ने उष्णकटिबंध में पूर्वी जेट प्रवाह, the easterly jet streams in the tropics नामक एक परिकल्पना की प्रस्तुति की थी, जिसमें उन्होंने माना कि मॉनसून की उत्पत्ति का संबंध तिब्बत के पठार से है, जो कि एक दीर्घवृत्त आकार में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है और 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पठार ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है और इसका तापमान निकटवर्ती क्षेत्रों से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। इस कारण यह एक हीटर के रूप में काम करता है और यहां से हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिसके फलस्वरूप क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में घड़ी की सुई के अनुसार, that is clockwise, the wind moves. One of these wind streams blows southward and develops into the tropical easterly jet stream,
the other stream blows in an opposite direction towards the North Pole and becomes the westerly jet stream over Central Asia. In this map, we can see the location of these jet stream during the summer season. This is the location during the summer season, and during the winter season, as the sun moves southward, the jet stream's location also moves down. It moves nearer to the Tropic of Cancer. तिब्बत के पठार पर अधोमंडल में एक निश्चित ऊंचाई पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं स्थापित होती हैं, जिसके कारण वहां से उत्तर की ओर उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह और दक्षिण की ओर पूर्वी जेट प्रवाह स्थापित होता है, और यह पूर्वी जेट प्रवाह मॉनसून की उत्पत्ति के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। अधोमंडल में उत्पन्न जेट प्रवाह से वायुमंडल की वाष्प युक्त मॉइस्चर लेडन विंड्स एक दिशा में प्रवाहित होती हैं एंड दे रीच द अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपरी अधोमंडल में पहुंच जाती हैं और वहां से चारों ओर फैल जाती हैं। जो पवनें निम्न अधोमंडल में पहुंचती हैं, वे जेट स्ट्रीम्स का रूप ले लेती हैं और जैसे जैसे ये अधिक ऊंचाई पर पहुंचती हैं, द्रवीकरण के कारण वर्षा करती हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून वास्तव में निम्न धरातल से लौटने वाला एक प्रवाह है जो देशांतरीय संचालन के कारण उत्पन्न होता है। जेट प्रवाह sometimes reaches the peninsular India, and it is responsible for the rains. It crosses the Indian Ocean and it intensifies as the high pressure cell, which is known as the Mascarene High. And after crossing the equator, these winds become the southwesterly winds and are known as the southwesterly summer monsoon winds. The third important factor responsible for the origin of Indian monsoon is the role of ENSO. अल नीनो एक सक्रिय गर्म जलधारा है जो दिसंबर में पेरू के तट पर बहती है, which is also known as the Peruvian or the Humboldt cold current. It flows parallel to the coast of Peru और यह हर 3 से 7 साल में एक बार प्रवाहित होती है और विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे का कारण बनती है। Due to this current, sometimes the temperature of Peru coast rises to 10 degree centigrade. The southern oscillation या जिसे हम दक्षिणी दोलन कहते हैं, यह है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में पाए जाने वाले मौसम संबंधी परिवर्तनों का एक प्रतिरूप है जो बहुत विचित्र है। हिंद महासागर में जब
समुद्र तल पर दाब अधिक होता है तो प्रशांत महासागर में दाब कम हो जाता है, और जब हिंद महासागर में दाब कम होता है तो प्रशांत महासागर में दाब अधिक हो जाता है। इस दक्षिणी दोलन को मापने के लिए अलग अलग सूचकों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी दोलन सूचकांक है SOI, जो कि प्रशांत महासागर को प्रतिनिधित्व करने वाले पॉलिनेशिया में ताहिती और हिंद महासागर को प्रतिनिधित्व करने वाले पोर्ट डार्विन के वायुदाब का अंतर है। जब इस SOI इंडेक्स की वैल्यूज धनात्मक या ऋणात्मक होती हैं तो वो भारत में अच्छे मॉनसून और खराब मॉनसून का घोतक होती हैं। Similarly, the Somali current is also affecting the origin of the Indian monsoon. During the northeast monsoon, the Somali current flows to the southwest, and during the southwest monsoon, it is a major western boundary current, which can be compared to the Gulf Stream current. Normally, there remains a low pressure area along the eastern coast of Somalia, but exceptional years, after every 6 or 7 years, the low pressure area in Western Arabian Sea becomes a high pressure area, and such a pressure reversal affects and weakens the monsoon in India. In 1920, Sir Gilbert Walker discovered the Walker cell. According to him, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उच्च और निम्न वायुदाब से भूमध्य रेखा पर वायु में ऊर्ध्वाधर गति आती है, जिससे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है और उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में वायु नीचे की ओर उतरती है। इसे वॉकर परिसंचरण या वॉकर सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। जब हिंद महासागर में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशियन आर्चिपेलागो में कम वायुदाब होता है, तब पवनें ऊपर की ओर उठती हैं और भारत में मॉनसून की वर्षा बहुत अच्छी होती है। जब यह पूर्व की ओर विस्थापित होता है, जैसे कि अल नीनो के टाइम पर होता है, तब भारत में वर्षा कम होती है। And this is the main cause of monsoons in India. With the help of this map, we'll understand the southern oscillation, the El Nino current, the Walker cell, and its effect on the Indian Ocean. पहले हम बात करेंगे सदर्न ऑसिलेशन की या दक्षिणी दोलन की, जो कि डार्विन और तिहाटी, जो कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में स्थित है, इन दोनों जगहों के बीच के एयर प्रेशर डिफरेंस को कहते हैं। दैट इज इट इज द सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स या दक्षिणी दोलन। और जब ये दक्षिणी दोलन धनात्मक या ऋणात्मक होता है तो ये भारत के मॉनसून के खराब और अच्छे होने का घोतक होता है। The second thing is, during the normal years, this is the situation
when the monsoon is rich in India, भारत के अंदर नॉर्मल डेज के अंदर वर्षा अधिक होती है। ड्यूरिंग द नॉर्मल ईयर्स, जब अल नीलो का प्रभाव पड़ता है, अल नीलो इज अ करंट फ्लोइंग पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ पेरू, जिसे हम पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज इफेक्टिव आफ्टर एवरी 4 to 7 years, और जब ये इफेक्टिव होता है तब भारत के अंदर मॉनसून कंडीशन एबनॉर्मल होती है। मॉनसून जो है वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जब मॉनसून दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो भारत के अंदर वर्षा कम होती है, और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों के अंदर, दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल के अंदर वर्षा अधिक होती है। In our next videos, we'll be discussing how rainfall is caused by these monsoonal winds in India, the distribution of monsoonal rain in India during the rainy season and during the retreating monsoon season. Thank you.